हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की वर्कशीट 26 को डिस्कस करते हैं। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। टुडे वील डिस्कस अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. Now, what is human respiratory system? It is an organ system in which inhalation and exhalation of gases takes place to meet the energy requirement. Now, as we all know, we inhale oxygen and carbon dioxide is expelled out. And this oxygen is involved with food and energy is produced. Now, let us see the different parts of this respiratory system. First, we'll start with nose. As we all know, this nose is the exterior part of our respiratory system. Inside it has tiny hair follicles which is covering the inner lining of nostrils, and it is acting as a body's defense against foreign materials and provides additional humidity for inhaled air. Now next, after nose there is larynx, which is also known as Adam's apple or voice box. Now it is the portion which rises and falls during the swelling of food particles. Now after larynx is pharynx. This nasal chamber now opens into a wide swallow space which is known as pharynx. Now it is a common path for both air and food, and it is the region which is preventing the entry of food particles into the windpipe with the help of an elastic cartilage which is known as epiglottis. Epiglottis prevents the food particles into entering into the windpipe. अब एक बार हिंदी में अगर हम बात करें, मानव श्वसन तंत्र क्या है? वह अंग प्रणाली है जहां पर की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसे पता है हमें कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अब हमारे श्वसन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो नाक, जैसे कि हमें पता है कि बाहर हमारे शरीर के बाहर एक नथुने का जोड़ा है जिसके अंदर छोटे छोटे बाल जो रोम नासिका के आंतरिक भाग को ढकते हैं, और बाहर से जो भी रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं सांस लेते समय हवा के साथ, तो उन्हें ये शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं और हवा को अतिरिक्त आर्द्रता प्रदान करते हैं। इसके बाद है हमारा स्वर यंत्र, जिसको हम एडम्स एप्पल या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यह वह हिस्सा है जहां पर कि खाने वाले कणों को निगलने के दौरान यह हिस्सा ऊपर और नीचे उठता या गिरता है। उसके पश्चात है ग्रसनी। अब ग्रसनी जो है एक विस्तृत खोखला स्थान है जहां पर कि हवा और भोजन दोनों के लिए एक आम रास्ता है। अब ये खाद्य कण वायु की नली में प्रवेश न हो इसके लिए एक उपकंठ या एक लोचदार उपस्थित रहती है जो स्वर यंत्र और अन्न की नली के बीच में एक स्विच का काम करती है। As you are seeing in the sheet again, the parts of respiratory system, that is the nose, larynx and pharynx. Nose, which is providing tiny hair follicles having hairs which acts as a body's defense against the foreign material. Larynx, which is termed as Adam's apple, and pharynx, which is a common path for both air and food, and it functions the preventing the entry of food into the windpipe. अब जैसा कि श्वसन तंत्र के अलग अलग अंग, जिसमें सबसे पहले है नाक, जो कि हमारे शरीर के बाहरी भाग में होता है जहां से हवा अंदर आती है, और उसके अंदर कुछ छोटे बाल उपस्थित रहते हैं जो कि किसी भी बाहरी रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करते हैं। स्वर यंत्र, जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। After pharynx, the next organ, respiratory organ, is trachea, which is the windpipe and rises below the larynx and moves down the neck. Now, this trachea is comprised of C-shaped cartilaginous rings, and this ring provides it from collapsing. Now, this trachea splits into two tubes, which is known as bronchi. Each tube enters into the lung individually.
Now this bronchi divides into secondary and tertiary and ends into bronchioles, which further divides into alveoli. Alveoli is a single-celled balloon-like structure which is filled with air. And last is the lungs, which is the chief center of the respiratory organ. Now it is located in the thoracic region near the backbone on either side of the heart. Now it is a pair of spongy organs. Now as we are having two lungs, right and left, the right lung is quite bigger and heavier as compared to the left lung. ग्रसनी के बाद हमारा अगला भाग है श्वास नली, जो स्वर यंत्र के नीचे से होते हुए गर्दन के नीचे तक जाता है। अब इस श्वास नली की दीवार सी के आकार की उपास्थि से बनी हुई होती है, जो इसको पिचकने से बचाती है। उसके पश्चात श्वास नली दो नलियों में विभाजित होती है, जिसको हम श्वसनी कहते हैं। प्रत्येक श्वसनी एक एक फेफड़े में प्रवेश करती है और ये आगे डिवाइड होती है और श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसके अंत में कूपिकाएं होती हैं। अब कूपिका की दीवार पतली और एकल सेल की बनी हुई होती है और गुब्बारे जैसी सूक्ष्म संरचना होती है, जिसमें वायु भरी रहती है और जहां पर की गैसों का आदान प्रदान होता है। अंत में फेफड़े। अब मनुष्य में श्वसन का मुख्य केंद्र है फेफड़े। ये छाती की वक्ष गुहा में रीढ़ की हड्डी के पास होते हैं और बड़े और स्पंजी होते हैं, और मुख्यतः दो फेफड़ों में से जो बाएं फेफड़े है उसकी तुलना में दायां फेफड़ा काफी बड़ा और भारी होता है। अब जैसा कि आप शीट में मानव श्वसन तंत्र का एक रेखा चित्र देख रहे हैं कि नासा द्वार से ग्रसनी, फिर कंठ, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, फेफड़े, कूपिका कोश और रुधिर वाहिकाएं। कूपिका कोश में गैसों का आदान प्रदान होता है। अब एक बार इंग्लिश में हम देखते हैं। नॉस्ट्रल्स, देन नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli. In alveoli, there are blood capillaries where exchange of gases takes place. Now, this bronchi, bronchioles, alveoli are present in lungs. So, this is the respiratory tract through which the respiration takes place. अब जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि किस तरह से कूपिकाएं हैं और उनके चारों तरफ ब्लड वेसल्स होती हैं जहां पर की गैसों का आदान प्रदान होता है। और चित्र में आप सारे भाग देख पा रहे हैं नासिका से कूपिका तक। अब हम देखते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या डिफरेंस है। In inhalation, thoracic cavity expands, ribs lift up, diaphragm becomes flat, and the volume of lung increases as the air enters into the lung. Whereas in exhalation, the thoracic cavity contracts, the ribs moves downward, diaphragm becomes dome-shaped, and the volume of the lungs decreases as the air expels out from the lungs. अब हम देखते हैं कि सांस लेते समय और छोड़ते समय क्या होता है। तो सांस लेते समय वक्षीय गुहा फैलती है, पसलियां ऊपर उठती है, डायफ्राम का आकार सपाट हो जाता है और फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है। उसी तरह से सांस छोड़ते समय वक्षीय गुहा सिकुड़ती है, पसलियां नीचे की ओर बढ़ती है, डायफ्राम डोम आकार या गुंबद की शेप का हो जाता है और फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है, जिसके कारण हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है और सांस लेते समय हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है। अब हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई? कूपिका का कार्य क्या है? अभी हमने देखा कूपिका वह स्थान है जहां पर की गैसों का आदान प्रदान होता है। सेकंड क्वेश्चन, वेयर नेम द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। अगेन क्वेश्चन का आंसर सेम है, गैसियस एक्सचेंज या गैसों का विनिमय किस स्थान पर हो रहा है? एल्वियोलाई स्थान पर हो रहा है। अब थर्ड वो पूछ रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जैसा कि आप शीट में भी देख रहे हैं। अभी हमने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को डिस्क्राइब किया या डिस्कस किया, तो इसके पॉइंट्स आप इस वर्कशीट से देख सकते हैं। इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, चित्र
तो ये चित्र का आप देख रहे हैं कि इस तरह से आप चित्र बना के उसके अलग अलग भागों को लेबल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान अपने उदर की गति को ध्यान से देखिए, महसूस कीजिए और अपने अवलोकन के पीछे क्या कारण हो सकता है। ऑब्जर्व योर movement of your stomach during inhalation and exhalation and what are the changes you observed। अब जैसा हमने देखा था कि इनहेलेशन के टाइम एयर इज मूविंग इन, हमारी जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो रही है, एज अ रिजल्ट वो स्टमक के ऊपर प्रेशर डालती है और स्टमक बाहर आता है। और एक्सलेशन के टाइम हमारी डायफ्राम डोम शेप में हो जाती है, प्रेशर रिलीज होता है और स्टमक अंदर हो जाता है। मीन्स इनहेलेशन में उदर बाहर और एक्सलेशन में उदर अंदर। सो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी। इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। पहले वर्कशीट को ध्यान से देखें और फिर क्वेश्चन आंसर्स करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।